media is actually very busy and they are working hard, you know, in covering this situation of a national crisis. No, it's not corona, it's Riya. It has become a witch hunt. हर दिन उसको नई बात के लिए ब्लेम करते हैं, जैसे कभी मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, नेपोटिज्म। मेरा मोज़क हो गया है, मुझे लगता है रिया ने ही छुपाया। और कुछ दिनों में तो उसको जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी ब्लेम कर देंगे, क्योंकि सब तो टीवी पे सही देख रहे हैं, कोई काम तो कर नहीं रहा। बट इफ यू सीन टीवी रिसेंटली, यू मस्ट नो दैट इट हैज बिकम अ मेगा एकता कपूर सीरियल, जहाँ पे हर कैरेक्टर की अपनी ही प्रॉब्लम है। बट और ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर तो एक ही है। बचा सको तो बचा लो रिया चक्रवर्ती को। प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है, और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। I know it's funny, but it is also very impressive. At least I'm impressed because Arnab का screen presence at least रिया से तो better है. And now we all know कि मोदी जी की अगली बायोपिक में किसे कास्ट करना है. Just give it to a man. He's too perfect for it. However, I want to shift your attention to a thing which is different than this, and that is the obsession of Indians with the death of these celebrities. A lot of people die, and we don't care about normal deaths. Like students die, farmers die, laborers die. But when it comes to a celebrity, Indians lose their shit. Yes. When Jayalalitha died, 300 people committed suicide. I mean, these are the same people who actually write, "Girl, are you oxygen? Cause I cannot live without you." Die hard fans, man, quite literally. और ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बस सेलिब्रिटी होने के स्टेक्स बढ़ा दे रहा है। अब ऐसे ही किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं मिलेगा। Like, you are not a celebrity, people are not dying after you. And going by that logic, every suicide bomber will also get a lifetime achievement award. 72 of them. I mean, I know I should have stopped, but it was funny. However, even in the case of Sushant Singh Rajput, Indian media has made a mockery of themselves. Yes, and this is what they showed. ऐसे जो टीवी चल रहा है उनका, यानी कि वो अपडेट ले रही है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या किस ये देखिए। और जितना मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, रिपब्लिक भारत चल रहा है। देखिए, जितना मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे कि इस वक्त टीवी चल रहा है, रिपब्लिक भारत चल रहा है। और This is confusing, man. I mean, Arnab Goswami on Republic TV, watching Riya Chakravarti, watching Arnab Goswami on Republic TV. This is Inception, directed by Arnab Goswami. I mean, and who wants their life to be shown 24/7 on TV, unless it's not Big Boss. But ये सब TRP का खेल है, देखो, सब TRP का खेल है। एक लड़ाई शिफ्ट होती है तो सारी लाइमलाइट उधर चली जाएगी। Now Kangana Ranaut is also fighting with Shiv Sena, and actually this happened with her. This is the office of actor Kangana Ranaut. Remember, a twist in the tale of the Kangana versus the Maharashtra government. The BMC, there you can see those live pictures on your screens, is actually demolishing a part of Kangana Ranaut's office. तो ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। Woo woo woo, shit got serious. But this is also a very third great thing to do. अच्छा, तूने मुझे ऐसा बोला, मैं तेरा होमवर्क खराब कर दूंगा। बट बीएमसी ने कंगना का ऑफिस तोड़ने के बाद उनको एक लेटर भी लिखा, और वो लेटर एक्चुअली हमारे पास है। एंड इट रीड्स, डियर ऋतिक रोशन्स एक्स। आई मीन, बीएमसी काफ़ी बैड एस डिपार्टमेंट भी लगता है मुझको। बट हियर्स द थिंग, उन्होंने एक वीडियो भी निकाला कंगना का ऑफिस तोड़ने के बाद, जहाँ पे वो एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं। पेलीची नागिन निघाली, मुन्ना डोळा लागला, पेलीची नागिन। ये ऋतिक रोशन क्यों डांस करा यार? There is one thing which Kangana hates the most, and that is Hrithik Roshan dancing. But Kangana is taking no shit from Bollywood. Like nepotism के against है वो, which is quite obvious. But she's also against drugs, which I don't get. Like तुम हिमाचल से हो यार, एक बार कसौल हो जाओ। बट अच्छे एक्टर्स की मान ली, और जब उसने लिस्ट दी कि कौन कौन एक्टर्स इनमें इन्वॉल्व है, दिस पर्सन came into the news and it was the funniest thing on the internet. How's the Josh? Hi sir. But I don't know why people were surprised. यार वो संजू का दोस्त है यार, वो ड्रग्स नहीं लेगा तो और कौन लेगा? But this has also been a case for CBI to get its lost reputation back. Like पहले तो कोई भी CBI को इज्जत नहीं देता था, but अब CBI काफी बैड एस हो गई है। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे।
कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना. ओके. I mean, this looks like a Gangs of Wasseypur movie. Okay. मतलब लोग लड़ रहे हैं और हमें मज़ा आ रही है और हमें बहुत मज़ा आ रही है. बट इससे किसी और को भी फ़ायदा हुआ है और वो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि बिहार और हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं. सो दिस हैज़ बीन देयर एजेंडाज राइट नाउ एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. बिकॉज अगर तुम देखो तो पहले लोग चुनाव में वोट कास्ट और बाकी वोट बैंक्स पे मांगते थे, बट एटलीस्ट दे आर नाउ प्रोग्रेसिंग. नाउ दे आर आस्किंग फॉर वोट्स ऑन Hindu Rashtra, Mandir, and the death of a late actor. I mean, don't get me wrong, but these are the signs of a developing nation that it will never get developed.